પોલીસ વિભાગની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડવાના ગુનાહિત ઈરાદાથી એક સ્પામાં કામ કરતી યુવતી અને તેના બે પુરુષ મિત્રોએ મળીને પોલીસ પર દારૂનો કેસ નહીં કરવા બદલ પૈસાની માંગણી કરવા અને શારીરિક અડપલા કરવાના ગંભીર આક્ષેપો સાથેની કહાની ઘડી ઘાતી હતી। જોકે ઉમરા પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને સઘન પૂછપરછને આધારે આ સમગ્ર બનાવટી સ્ટોરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને ગુનામાં સંડોવાયેલા ત્રણેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। આ કિસ્સામાં પોલીસે અસલી ઘટના છુપાવવા માટે પોલીસ વિરુદ્ધ ખોટા આક્ષેપો લગાવવાના બનાવટી આરોપ પર ભાર મૂક્યો છે। 23 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ આશિક અલી ઉર્ફે જુલી આવિતો સેહમાન નામની યુવતીએ જણાવ્યું કે 21 ઓક્ટોબર 2025ના રાત્રે 10 વાગ્યાથી 22 ઓક્ટોબર 2025માં વહેલી સવારે 2 વાગ્યાના અરસામાં આઠવાલાઇન્સ ચોપાટી દરગાહ 3 રસ્તાથી એસકે નગર 4 રસ્તાને આવવા સુધી જાહેર રોડ પર કૃણાલ નામના પોલીસ કર્મચારીએ પીસીઆર વાનમાં પેટ્રોલિંગ દરમિયાન તેમને રોક્યા। યુવતીએ આક્ષેપ કર્યો કે પોલીસ કર્મીએ તેમને તમારી પાસે દારૂ છે એટલે એફઆઈઆર થશે કહીને ધમકાવી અને 2-3 કલાક સુધી પીસીઆરમાં બેસાડી રાખી હતી। આ દરમિયાન પોલીસ કર્મીએ તેની સાથે શારીરિક અડપલાને જાતીય સતામણી કરી હતી। એટલું જ નહીં, દારૂની બોટલનો કેસ નહીં કરવા બદલ રોકડા રૂપિયા 50,000ની માંગ પણ કરી હતી। આક્ષેપોની જાહેરાત થાય તે પહેલા સરફરાઝ ઉર્ફે રોકી નામના તેના મિત્રએ 22/10/2025ના વહેલી સવારે 2:17 કલાકે 112 નંબર પર પોલીસ હેલ્પલાઇન પર કોલ કરીને આશિક અલી ઉર્ફે જુલીને ઉમરા પીસીઆર દ્વારા હેરાનગતિ થવાનું જણાવ્યું હતું। ત્યારબાદ તેઓ ડુમસ પોલીસ સ્ટેશન ગયા અને જ્યાં ડુમસ પોલીસ સ્ટેશન ડાયરીમાં આ બાબતની નોંધ કરીને કાર્યવાહી શરૂ કરી। 22/10/2025ના રોજ યુવતીએ ફરીથી ડુમસ પોલીસ સ્ટેશન આવીને જાહેરાત કરી કે ચોપાટી દરગાહથી પોલીસે પીછો કરીને એસકે નગર બ્રિજ સુધી લઈ જઈને પીસીઆરમાં બેસાડીને શારીરિક હેરાનગતિ કરી હતી। આ ઘટનાનું કાર્યક્ષેત્ર ઉમરા પોલીસ સ્ટેશન હોવાથી ઉમરા પોલીસ સ્ટેશને આ યુવતીને લાવીને પૂછપરછ શરૂ કરી। પોલીસ વિરુદ્ધના ગંભીર આક્ષેપોને કારણે પોલીસે પ્રાથમિક તબક્કે ઘટનાની ગંભીરતા ધ્યાને લઈને યુવતીની જાણ મુજબ તાત્કાલિક ધોરણે તપાસ હાથ ધરી હતી। શરૂઆતમાં યુવતી પોતાની હિલચાલ અંગે સંતોષકારક જવાબ આપી શકી નહોતી અને ઉલટાનું પોલીસ વિરુદ્ધ ફરિયાદ છે એટલે પોલીસ ફરિયાદ લેતી નથી તેવા આક્ષેપ કરીને આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો। જોકે નાયબ પોલીસ કમિશનર ઝોન 4 નિધિ ઠાકોરની રૂબરૂમાં પૂછપરછ કરવામાં આવતા અંતે આશિક અલી ઉર્ફે જુલી ભાંગી પડી અને તેણીએ કબૂલાત કરી હતી કે પોતાના બોયફ્રેન્ડની હકીકત છુપાવવા માટે પોલીસ વિરુદ્ધ આ ગંભીર આક્ષેપોવાળી બનાવટી જાહેરાત કરી હતી। સમગ્ર હકીકત સામે આવતા ઉમરા પોલીસે ગુનો નોંધ્યો અને પોલીસે આશિક અલી ઉર્ફે જુલી, સરફરાઝ ઉર્ફે રોકી, હાજીભાઈ મુલતાની, સુનિલ ઉર્ફે ગોટુ, કંચનભાઈ કંથારિયાની धरपकड़ करी है। उमरा पुलिस स्टेशन में 23 अक्टूबर को एक जाहिरात सामने आई जिसमें कि एक लड़की आशिक अली उर्फे जूली, इनकी ऐसी अर्ज थी कि 21 की रात और 22 की सुबह को ये दारू पीते पीते ऑटो रिक्शा पे जाते हुए अपने बॉयफ्रेंड से लड़ते हुए जा रही थी और उस समय उमरा पीसीआर ने इनको पीछे से रोक करके अपनी पीसीआर गाड़ी में बिठाया और उनके साथ बदसलूकी की और एफआईआर ना करने के लिए 50,000 रुपए की मांगनी की। ऐसी जाहिरात मिलते ही तुरंत पुलिस तंत्र हरकत में आया और जब विशेष पूछताछ की तो उन्होंने पहले विगत बताने से मना किया कि मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं नशे में थी। क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया तो इसके लिए हमने फिर डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश की कि हुआ क्या है। तो ये जब बनाव सामने आया कि बिल्कुल भी विगत सारी खोटी ही उन्होंने बताई थी। उसमें हुआ ऐसा था कि वो रात में अपने घर से 8 बजे के आसपास निकले थे और वहां से फिर वो अपने किसी फ्रेंड के साथ उधना दरवाजा पे गया और वहां से वो अपने दूसरे फ्रेंड सुनील कंथारिया नाम के व्यक्ति के साथ ह्युंडई की गाड़ी पे घूम रहे थे पूरे विस्तार में। और उस दौरान उनके जो तीसरे एक मेल फ्रेंड है सरफराज, उनसे वो फोन पर लड़ाई कर रहे थे और उनसे कुछ सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। और फाइनली इस ह्युंडई गाड़ी से उनको आवा चौकड़ी पे एक जगह है वहां पे उतारा गया और वहां पे जब ये सरफराज उनको मिलने आया तो उन्होंने उसे ऐसा बताया कि पुलिस ने मेरे साथ बदसलूकी की है। और सरफराज को ये बात लेकिन पता था कि वो सुनील के साथ घूम रही थी, फिर भी उसने सामने से 112 और 108 को बुला करके उसको सिविल हॉस्पिटल पे लेकर के गए। सिविल हॉस्पिटल पे उन्होंने सारवार लेने से मना किया रात में और वो वापस घर आ गए। अगले दिन जब इसकी डुमस पुलिस स्टेशन में जान हुई और इस बात की उन्होंने तफ्तीश की तो ऐसा पता चला कि उन्होंने लड़की ने पहले फोन उठाने से इनकार किया, फिर वो आने से मना किया। फिर जब वो आए तब उन्होंने ये पुलिस के द्वारा की गई बदसलूकी की बात की जानकारी दी और उसकी जब विशेष हमने तपास की और सारे सीसीटीवी फुटेज सर्वेलेंस के दौरान जब हमने पाया ये बात बिल्कुल खोटी है और उन्होंने
पुलिस बन करके धोखा देने की कोशिश की है और पुलिस का बदनामी करने की कोशिश की है, तो इन तीनों के खिलाफ उमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के 4 सेक्शंस लगाए गए हैं। ये लड़की स्पा में काम करती हैं और जो सुनील कंथारिया है, वो उसका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है और ये सरफराज प्राइवेट आदमी है जो रेगुलर कोई बिज़नेस करता है ऐसा। तीनों एक दूसरे को जानते हैं। सरफराज और जो महिला है आशिक अली, ये एक दूसरे को जानते हैं और आशिक अली और सुनील एक दूसरे को जानते हैं। सुनील और सरफराज ये एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं, ये अभी तपास का विषय है। ये करने का पैसे का मकसद एक तो उनका जो पर्सनल मैटर लव ट्रायंगल का इशू चल रहा था कि अपने पुरुष मित्र को सहानुभूति लेना, उसे जेलस करना, ये और मोस्टली ये पर्सनल मैटर ही अभी लग रहा है और फाइनली आगे इसमें कोई और मोटिव है कि नहीं, पहले कभी ऐसा किया है कि नहीं, ये हम अभी तपास में अगर सामने आएगा तो आपको जान करेंगे। मैं उसको एग्जाम देने के लिए उसको पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तो कहीं पे भी आपस में बात कर सकते, कुछ भी कर सकते। पुलिस का इस्तेमाल क्यों किया गया? पुलिस का इस्तेमाल, ये आइडिया उनको कहाँ से आया ये हमें नहीं पता कि उसको पीसीआर सूझा कहाँ से कि ये बात हम बोले कि पुलिस की गाड़ी ने मुझे रोका और उसके साथ बदतमीजी की। लेकिन एक कॉल रिकॉर्डिंग में ये सामने आया कि जो महिला है, उसके जो सुनील कंथारिया नाम का दोस्त के साथ जब वो हुंडई में घूम रही थी, तब उसने इस महिला ने अपने सरफराज को फ़ोन किया और उसमें उसने उस लड़के को फ़ोन दे दिया और उसने ऐसा बोला कि मैं चौक बाज़ार डीसीबी से कोई विजेंद्र सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ और आगे की कोई बात की कि भई पैसे दे दो, ऐसा कुछ करके। तो शायद ये उन दोनों के बीच की आपस का एक आइडिया उनके दिमाग में आया होगा कि इस तरह से करके हम सहानुभूति ले सकते हैं। बाकी कोई पर्टिकुलर इनका मोटिव था या नहीं था, ये अगर तपास में सामने आएगा तो हम जानेंगे। याशीन दारा, दिव्यांग न्यूज़, सूरत।